بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ رب اشرح لی صدری، اے رب کھول دے میرے سینے کو، میرے دل کو، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میری بات کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور تاکہ میں میری زبان کی جو گرا ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں، جو بتانا چاہتی ہوں، وہ اچھے سے سمجھا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں کہ آپ سب لوگ یہاں ایک بار پھر قرآن کا کچھ اگلا حصہ سمجھنے کے لیے موجود ہیں۔ قرآن کورس 1 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کل 20 اسباق پر مشتمل ہے، جس میں سے 17 اسباق ہم کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں، اور آج سبق نمبر 18 سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف 2 اسباق باقی ہیں۔ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بہت انتھوزیسٹکلی، جوش و خروش سے، محبت سے ان رہ جانے والی کلاسز کو اٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا، پھر ہم فائنل کوئز کی دہرائی کریں گے، اور اس سے اگلے دن پورا جو کورس ہے اس کا کوئز ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ سب کا پراپر ریزلٹ ہوگا جو اناؤنس کیا جائے گا۔ سبق نمبر 18 کا پہلا حصہ یعنی اے پارٹ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن و حدیث کے بارے میں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم بی پارٹ سمجھیں گے جو کہ گرامر کے بارے میں ہے، اور وہ گرامر بھی قرآن ہی کی گرامر ہے، قرآن ہی سمجھنے کے لیے ہے۔ قرآن کورس 1 حصہ اول نماز کے ذریعے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کو 50% سے زائد الفاظ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں، اور میکسیمم سیکھ چکے ہیں۔ نماز کے ذریعے ہونے کی وجہ سے اب تک ہم پوری نماز کو سمجھ چکے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نماز کے دوران سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے نماز کو، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی واضح فرق محسوس کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے اجر و ثواب میں، ریوارڈز میں بھی جو اصل کامیابی ہے وہ اب ہمیں حاصل ہو رہی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم اس بات کو پر یقین تو ہمارا پہلے بھی ہے، لیکن ہم دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بات کریں گے۔ گرامر سے فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر اسٹڈی کریں گے۔ کچھ سم تھنگ نیو ہونے والا ہے آج، جو ٹیبل کا گرامر کا سب سے آخری نیا حصہ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ہم اختتام کرنے والے ہیں، یہ کورس مکمل ہونے والا ہے، تو گرامر کا سب سے آخری کانسیپٹ آج میں آپ کو متعارف کرواؤں گی۔ نکات تعلیم یا شوق کی بات ہوگی۔ اس میں 14 یعنی 14 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن میں 898 بار یعنی 898 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ سبق نمبر 18 کے اختتام تک، سبق 1 سے 18 تک کل 220 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں، یعنی 40,469 ٹائمز۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اندازہ لگائیے، قرآن کے 78,000 الفاظ میں سے 40,000 سے زائد ہم سیکھ چکے ہیں صرف 18 دنوں میں، 18 گھنٹوں میں۔ ماشاءاللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ ہوم ورکس کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے، ریویژن ایوری تھنگ۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، مطلب ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ بار۔ کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ آیت مبارکہ میں اکثر کلاس کے دوران ذکر کرتی رہی ہوں، تو آج یہی ہمارے سبق کا حصہ ہے جس کو میں مختصر بتاتی تھی، آج ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے۔ وَلَقَدْ اس پر ٹک لگا ہوا، اٹ مینز کہ ہم اس کو سیکھ چکے ہیں پہلے۔ وا، لا اور قد 3 الفاظ ہیں، اس کو اگر ہم بریک کریں انٹو کمپوننٹس، انٹو اسمالر پارٹس، چھوٹے ٹکڑوں میں الفاظ کو الگ کریں،
तो इस एक्चुअली 3 अल्फाज जो हैं वो बनते हैं। देखने में हमें ये एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन असल में पूरा फ्रेज है, 3 अल्फाज से मिला हुआ, व ला कद, ठीक है। और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना, इसको 2 हिस्सों में अलग अलग किया जा सकता है समझने के लिए, और इसके लिए भी जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये एक लफ्ज नहीं है, देखने में लफ्ज लग रहा है, ये पूरा फ्रेज है, यानी 2 अल्फाज से मिलकर बना है। यस्सर आसान, ना हमने या किया हमने, तो ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और अलबत्ता तहकीक हो चुकी है इस बात पर, हक है, ये बात तहकीक है, सच है, बिल्कुल सच है, बगैर शुकूक व शुबहात के, कि हमने आसान किया है। ना का लफ्ज ज़माइर मुत्तसिला में हम पढ़ चुके हैं, हु हुम का यी कुम, ना हम, हमारा, हम ये पढ़ चुके हैं। यस्सरना, हमने आसान किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। युस्र से निकला है ये लफ्ज, युस्र अरबी का लफ्ज है जिसका मानी होता है आसानी, ईज इंग्लिश में। उस्र का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। देखिए एक जैसे लफ्ज हैं, युस्र, उस्र, युस्र का मतलब आसानी, उस्र का मतलब मुश्किल, लेकिन एक बात को ज़हन में रखिए कि ये जो उस्र का लफ्ज है, एक्चुअली पढ़ने में अगर ये दोनों पढ़े जाएं तो हमें उस्र का लफ्ज पढ़ना थोड़ा सा, उसको अदा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है युस्र की निस्बत, क्योंकि आइन है और फिर अरबी तजवीद के हिसाब से आइन की एक प्रॉपर आवाज है, ठीक है। तो हम कहते हैं उस्र, लेकिन जब कहते हैं युस्र तो वो बहुत आसान है। इस निस्बत से आपको याद रहेगा कि युस्र का मतलब आसानी है और उस्र का मतलब मुश्किल है। ये एक हिंट थी जो मैंने आपको बताई ताकि आपको आसानी से याद रहे। युस्र आसानी, और यस्सरना हमने आसान किया। किसको आसान किया? अल कुराना, कुरान को। देखिए हर लफ्ज के 2 मानी हुआ करते हैं। एक तो होता है लुग़वी मानी, जो किसी भी जुबान के हिसाब से उसकी डिक्शनरी में मिलता है, ठीक है। डिक्शनरी मतलब लुगत उर्दू में कहते हैं, अल्फाज के मानी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस मानी को कहते हैं लुग़वी मानी या फिर लिटरल मीनिंग इंग्लिश में। और अल कुरान का किसी भी लफ्ज का जो दूसरा मानी होता है वो होता है इस्तिलाही, या दीन के हिसाब से हम इसे शरई मानी भी कहते हैं, इंग्लिश में टेक्निकल मीनिंग कहते हैं। ये इस्तिलाही शरई मानी वो होता है जो किसी खासियत की वजह से उसके साथ फिक्स हो जाए, जोड़ दिया जाए। जैसे अगर लफ्ज बहुत ही बाबरकत लफ्ज, अल्लाह की किताब का नाम अल कुरान है, अल कुरान का लफ्जी मतलब है बहुत पढ़े जाने वाला, जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, अरबी जुबान में उसको कहेंगे कुरान, अरबी जुबान वालों के हिसाब से। और शरई और इस्तिलाही तौर पर हमारे दीन में खास कर दिया गया ये लफ्ज अल्लाह की किताब के लिए, ठीक है। वो किताब जो अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए जब इसका इस्तिलाही मानी कोई पूछेगा तो हम कहेंगे अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाई, आखिरी किताब जो कयामत तक के लोगों के लिए हिदायत की किताब है। और कोई लुग़वी मानी पूछेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली। अब ये देखिए ये भी एक नाम में भी मुआवजा मौजूद है। आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। हम पढ़ रहे हैं कि ले जिक्र, ली का मतलब है लिए, अज जिक्र जिक्र, ठीक है। जिक्र का मानी हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, यानी इसका मतलब होता है याद करना, ठीक है। और भी मानों में आता है, लेकिन एक्चुअली जो फर्स्ट मानी हम इसका समझेंगे वो है याद करना। ओके, यहाँ देखिए दूसरा मानी आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है समझना और नसीहत हासिल करना। जिक्र का पहला मानी हम पहले से जानते हैं, दूसरा मानी हमने आज समझ लिया, ठीक है। तो अगर जिक्र का लफ्ज आएगा कुरान में तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? याद करना, समझना, नसीहत हासिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे मानी हमें याद रखने हैं। किस लिए आसान है? अब ये अगला सवाल हमारे ज़हन में आता है कि आसान किस लिए है? जिक्र के लिए, यानी हिफ्ज करने के लिए, याद करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए। ये 2 चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं जो मैंने वाज़ेह कर दी हैं। फतवे देने के लिए, अहकामात निकालने के लिए हमें मजीद मेहनत करनी होगी। अगर हम ये कहें कि नहीं हमें जो है वो बाकायदा फतवे देना, बाकायदा बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करना, हमें वो करना है तो हमें मजीद पढ़ना होगा। प्रॉपर जो जिस तरह बहुत सारे आलिम और आलिमा होती हैं, आलिमात होती हैं और उलमा इकराम होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकम्मल इल्म हासिल किया होता है कुरान का, मुकम्मल अहादीस का, तो फिर वो इस काबिल होते हैं, उनका ज़हन, उनकी समझ कि वो इस तरह से बात कर सकते हैं,
फतावा के लिए एंड ऑल दैट। लेकिन हमें ये काम आम इंसान को जो है वो ये नहीं करना होता। अगर कहीं कोई ऐसे मसाइल हो, जैसा कि पहले कल की क्लास में भी मैंने जिक्र किया, तो हम बाकायदा उलमाए कराम से कांटेक्ट करेंगे, उनसे राब्ता करके उनसे पूछेंगे। जबरदस्ती खुद से नहीं कहेंगे कि हमें लगता है ये है तो दीन में ये होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये 2 चीजें जो है ये हमारा काम है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ये आसान है। आपने खुद देखा कि आप सिर्फ 20 घंटों में नमाज को समझने के साथ कुरान के और हिस्से को भी समझ रहे हैं। आज ये 18वां घंटा है, समझे। चैप्टर 18 है, अगर हम चैप्टर्स को देखें, इससे पहले 17 घंटे, तो पहले 11 घंटों में हमने नमाज को तो समझ लिया, ठीक है। बल्कि 10 घंटों में 11वें सबक में हमने सूरतुल इखलास समझी थी, राइट। तो देखिए कितना आसान है। और इसके साथ 20 घंटों में जब हम मुकम्मल कर लेंगे, तो मुकम्मल जो अल्फाज हैं वो उतने हैं जितने कुरान में 40,000 बार आए हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यानी 50% कुरान हमें याद हो जाएगा। तो सोचिए किस कदर आसान है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी हम जाते हैं कोई किताब पढ़ने के लिए, तो हम इससे कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। वो कुरान जो एक्चुअली जामे, मुकम्मल और दुरुस्त इल्म है, उसको सीखना इतना आसान है कि इतने कम वक्त में हम 50% तक कुरान तो समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात तो यहाँ साबित हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुभान अल्लाह। और अपने तसव्वुर और एहसास के साथ दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जितनी खुशकिस्मती अता फरमाई है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशकिस्मती के साथ हमें कुरान को समझने, नमाज को समझकर पढ़ने वाला बनाया है, तो अल्लाह ताला हमें इस सफर पर इसी तरह गामजन रखे और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। और अपना एहतसाब भी करना है कि हम कितने समझकर, अल्लाह ने तो हमें मौका दे दिया, अब हम कितना समझकर इस आसानी का फायदा उठा रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें देखना है। अगर कोई कमी रह रही है तो हमें मेहनत करनी है उस पर, प्लान बनाना है कि फ्यूचर में, अगर अभी तक तो हमारे पास फाइनल क्विज में भी दिन है, अगर कोई चीजें रह गई हैं हमें उनको स्टडी करना है, एक दूसरे से पूछना है, ठीक है। और दूसरों को भी बताना है कि वाकई हमने इसको देखा, कि जितना हम समझते थे कि शायद हम, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, ऐसा नहीं था। हमने चंद घंटों में इतना कुरान सीखा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी बताएं, तबलीग करें। तो हमने पढ़ा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं, अमल से इसका शुक्र अदा करें। कहने को तो हम कह रहे हैं, बार बार जरूर कहेंगे, बार बार कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तमाम तारीफें शुक्र तेरे लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज हो, सिर्फ जबानी तो जो है वो काफी नहीं होती ना। कोई भी चीज हो, हकीकत तो यही होती है कि आप उस पर अमल करके दिखाएं ना, अमली तौर पे साबित करें। तो यहाँ भी हमें अपने अमल से साबित करना होगा उस शुक्र को, अगर वाकई कुरान हम मान रहे हैं, इस बात को भी कुरान आसान है। तो इस नियत और प्लान के साथ कि हमें अल्लाह का शुक्र करना है, अमल करके दिखाएं और जल्द से जल्द पूरा कुरान सीखें। ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, आपको भी कह रही हूँ। अगर हम वाकई हकीकतन अल्लाह का शुक्र करना चाहते हैं कि तूने कामयाबी के रास्ते को इतना आसान बना दिया हमारे लिए, हमें तौफीक भी दे दी, प्लेटफॉर्म भी मुहैया कर दिया, जगह भी मुहैया कर दी, तो या अल्लाह हम तेरा दिल से शुक्र करते हैं और अमल से तुझे अब इस शुक्र के तौर पर पूरा कुरान समझ कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सो अगर कोई और भी ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए कि नहीं, ऐसी बात कहना तो अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमा दिया, अनाउंस कर दिया कि हमने कुरान को आसान बनाया है। अब अगर हम कहें नहीं मुश्किल है, तो इसका मतलब है हम उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर हमारा ज़हन ये कहे कि मुश्किल है, तो भी उसको समझाएं, वो शैतान का वसवसा हो, जैसे हमने सूरतुल फलक में पढ़ा, ठीक है। हकीकत नहीं है वो शैतान हमें कह रहा है, वर्गला रहा है, ताकि हम रास्ते में से ही छोड़ दें, अधूरे रास्ते में से छोड़ दें, ठीक है। ये सारी इसकी साजिशें हैं। तो हमें अपने आप को समझाना है, नहीं, ये शैतान मुझे कह रहा है, जो बात मेरे ज़हन में आ रही है मैं इसको मानता नहीं हूँ, ठीक है। हम अल्लाह की बात को मानते हैं कि कुरान आसान है। हो सकता है कोई वक्त ऐसा हो जब हमें कोई ग्रामर या टेबल उस वक्त हमें लग रहा हो कि हम समझ नहीं पा रहे, हो सकता है उस वक्त तबीयत कुछ ठीक ना हो सकता है हमने बहुत ज्यादा काम किया और ज़हन थका हुआ है, तो अल्लाह ने तो पूरा सिस्टम दिया ना, आप वक्त पर एक चीज करें, फिर आराम करें, फिर दूसरा काम करें। तो हम ये कहते हैं कि अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, जरा फ्रेश होकर, कुछ खा पी कर, होता है ना ऐसा भी। तो ये चीज है, हम ये सोचेंगे कि अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगा, लेकिन ये नहीं कि कुरान मुश्किल है, कुरान आसान है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया। और दूसरी बात ये कि खुद ब खुद तो कोई चीजें नहीं होती, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम कहें इंतहाई आसान है, उनको भी करने के लिए मेहनत और वक्त तो फिर भी चाहिए। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में एक एग्जांपल दी थी कि बिरयानी और बनानी हो, या फिर एग बॉयल करना हो या फ्राई करना हो, तो आसान क्या है, आप सबने कहा था कि फ्राई एग,
تو دیکھیں فرائی ایگ بھی خود بخود تو نہیں بنتا نا, فرائی ایگ کرنے کے لیے بھی ہمیں جانا پڑتا ہے کچن میں اور محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو بنا کر لا کر پھر کھانا پڑتا ہے, محنت تو اس میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی چیز آسان ہے تو بس ہم بیٹھے رہیں گے تو وہ ہو جائے گی, محنت تو بہرحال کرنی ہوگی, جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ تو خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. دس از ٹرو, یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات, اس بات کو میں تو عملی طور پر مانتی ہوں, آپ بھی مانتے ہوں گے یقیناً. تھوڑی سی کوشش کریں, تھوڑی سی, لیکن اگر جان بوجھ کر دور رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے ٹھیک ہے اٹس فائن, تمہیں تڑپ ہی نہیں ہے, تمہیں محبت ہی نہیں ہے, تم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, تم جانتے مانتے ہی نہیں ہو اپنے رب کو, ٹھیک ہے. تھوڑی سی کوشش ہمیں کرنی ہے, تھوڑی سی کوشش کر کے اسٹیپ آگے لے کر آئیں, آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے رستے آسان فرماتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے خود کے لیے آسان ہے پہلی بات تو, پھر دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے, مطلب فتوے دینا اینڈ آل دیٹ وہ بہت آگے کی باتیں ہیں, لائک جن کے لیے ہم علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں اور کرنا ہوتا ہے, ضروری ہے. یہ خود سے جو بات پتہ نہیں دین میں وہ کبھی بھی نہیں کہی جاتی کہ ہم اپنے ذہن سے کہتے ہیں ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہی ہوگا, نہیں, دین کے ساتھ ہم اس کو نہیں ملا سکتے, یہ بات اچھے سے یاد رکھیں. لیکن بہرحال دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. جو سمپل چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں, ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں, وہ چیزیں جو ہمیں اپنے لیے پتہ چل گئی ہیں وہ ہم دوسروں کو بتائیں گے, تو یہ اس کے لیے بھی آسان ہے. جیسے میں اب سیکھ کر آپ کو سکھا رہی ہوں, اور یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں, آپ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سیکھیں, اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ٹیچر بن کے بیٹھیں, یہ سوچیں ابھی سیکھ کر آگے سکھانا ہے, تب ہم زیادہ دھیان سے سنیں گے. اس طرح سیکھیں تاکہ ہمارا انداز بیان, اس کی تمام دلیلیں, ہر چیز جو چیز ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے, ہم اپنے لیے بھی یاد کریں اور دوسروں کو نصیحت کریں, تو ہم بہترین طریقے میں کریں. جتنے اچھے سے ہم سمجھا سکیں گے اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. ہمیں اپنی طرف سے اچھی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اب آج ڈیٹیل سمجھنے کے بعد جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہمارے تصور اور احساس مطلب کتنا اچھا ہوگا, اس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو کتنا فائدہ محسوس ہوگا. پھر ہم دعا بھی کریں گے, ہمیں اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. دوسرا حصہ آج کے سبق کا, سبق اے کا کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند حدیث, اوتھینٹک حدیث, بخاری جو حدیث کی کتاب ہے مستند, اس سے ہے یہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بھی میں کئی بار اس کا ذکر کر چکی ہوں. خیرکم تم میں سے بہترین, من وہ ہے جو, تعلم القرآن قرآن سیکھے, وعلمہ اور سکھائے اس کو. پہلا جو فریز ہے ہمارے پاس, چلیں سادہ الفاظ میں لفظی کہہ لیتے ہیں, وہ اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے. خیر اچھا, بہترین, بیسٹسٹ, دی بیسٹ, کم تم سب, اس کا اشارہ یہ ہے. یہ بھی ہم نے ضمائر متصلہ اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل میں اس کو ہم نے پڑھا ہے. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ, کم تمہارا یا تم سب, ٹھیک ہے. خیرکم تم سب میں سے بہترین. اب یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اور ہمیں سب کو پتا ہے اس بارے میں, اتنے معلومات تو ہم سب کی ہیں کہ نبی کوئی بھی کام, کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے, تو پتا ہے نا ہم سب کو. تو جو بھی چیزیں ڈیفینیٹلی وہ اللہ کی مرضی سے ہے, یعنی اللہ کی مرضی سے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سب میں سے بہترین ہے. تم سب کون؟ تم سب میں سب آ جاتے ہیں, پوری دنیا کائنات, پوری دنیا کائنات کے جو بھی مخلوقات ہیں, جاندار ہیں, بے جان ہیں, سب کو کنسیڈر کر لیں, ان سب میں سے بیسٹ کون ہے, وہ بات ہو رہی ہے. خیر اچھا, بہترین, خیرکم تم سب میں سے بہترین. من کے دو معنی ہیں, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کون اور جو, یاد رکھیے. جیسے اگر ہم من کو پڑھتے ہیں, یہاں ایک جملہ دیا گیا من ربو کا, تو اس کا معنی ہے کون ہے تمہارا رب, ٹھیک ہے. سوری, من ربو کا کون ہے تمہارا رب, ٹھیک ہے. اور انگلش میں ہم یہ جملہ آپس میں بولتے ہیں ہو آر یو, کون ہو تم, کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر شروع میں آ رہے من تو اس کا معنی یہی ہوگا. اب اگر ہم اس کا دوسرا معنی دیکھیں, یہ دیکھیں دوسرا معنی ہے جو. اب اس کی بھی دو مثالیں یہاں موجود ہیں. جیسے ہم نے ابھی پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو ہم نے کیا پڑھا, تم میں سے بہترین ہے وہ جو,
मन का मतलब जो हो गया ना, इसी तरह इंग्लिश में हम पढ़ते हैं आई एम द वन हु इज डॉक्टर, आई एम द वन हु इज कुरानिक टीचर, आई एम द वन हु इज कुरानिक स्टूडेंट। तो हु यहाँ पर भी हु है, यहाँ भी हु है। अब ये एक्चुअली दो मिसालें क्यों बताई जा रही है? मन का मानी बताने के लिए। मन की पोजीशन बिल्कुल अरबी जुबान में वही है जो हु की पोजीशन इंग्लिश जुबान में है। हु अगर शुरू में आ रहा है तो मानी है कौन, हु कौन, और अगर दरमियान में आ रहा है तो मानी है जो या जिस। इसी तरह मन शुरू में आएगा तो कौन है तुम्हारा रब, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना, मन दरमियान में आया तो मानी होगा तुम सब में से बेहतरीन है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, आई होप कि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद बात समझ में आ गई होगी। तअल्लमल कुराना, तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया। अब ये मिलते जुलते लफ्ज है लेकिन याद रखना है हमने इनको, ठीक है, मिक्स अप नहीं होने चाहिए। ता का इजाफा है जिसमें वहां सीखने की बात हो रही है, ठीक है, और अल्लमा सिखाया, इनको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इस हिसाब से भी हम याद रख सकते हैं। चलिए हम सपोज करते हैं कि पढ़ने पर सीखने पर ज्यादा मेहनत होती है ना, पहली बार सीख रहे होते हैं, ठीक है, या ये करें कि ये क्रेडिट यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है पहले सीखने वाले को। यहाँ इस हदीस मुबारका में भी पहले सीखने वाले की बात हो रही है, सुभान अल्लाह। तो इस वक्त इस क्लास में आप सबको मुबारकबाद कि अभी आप सीखने वाले हैं। पहले बात सीखने वालों की हो रही है कि बेहतरीन है, ठीक है। तो जिनकी पहले बात हो रही है उसमें आप देखिए एक हर्फ ज्यादा है, ये मैंने एक पहचान आपको बताई है ताकि आपको याद रहे। अल्लामा का मतलब है सीखा, अल्लामा सिखाया, अल्लमहू सिखाया उसको। फिर से ज़माइर मुत्तसिल आगे से हमें लफ्ज मिल गया, अटैच्ड प्रोनाउन, हु उसका, हुम उन सबका, ठीक है। तो अल्लमहू सिखाया उसको, ये देखिए तअल्लमा अल्लमा, ये दोनों हमें याद रखने हैं। और याद कैसे रखने हैं? याद इसलिए रखने हैं समझने के लिए भी और इसलिए भी कि दोनों हमारे काम है। अगर हमें वाकई बेहतरीन बनना है तो दोनों हमें करना है इंशाल्लाह, क्योंकि हम पूरी तरह इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें सीखना भी है और उसके बाद सिखाना भी है। अब तक हमने सैकड़ों क्लासेस अटेंड की होंगी, बहुत सारी क्लासेस बचपन से अब तक, ठीक है। मगर यकीन कीजिए इस वक्त भी ना जाने कितनी क्लासेस दुनिया में हो रही होंगी, लोग बहुत सारे हुनर, बहुत सारे इल्म सीख रहे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त ये क्लास जहां मैं और आप मौजूद हैं और हर वो क्लास जहां कुरान सीखा और सिखाया जाए, वो दुनिया की बेहतरीन क्लास है, ठीक है। अब ये बात आपसे करते हुए मेरे जहन में एक, कहते हैं तसव्वुर और एहसास से सीखें, तो इस बात के साथ मेरा तसव्वुर और एहसास इतना जुड़ा हुआ है कि मेरे जहन में एक सीन क्रिएट हो गया, जैसे एक अंधेरी रात है और उस रात में कहीं कहीं वो जो बड़े वाले सितारे चमक रहे होते हैं ना, दूर से नजर आ रहे होते हैं, वो जब ज्यादा सितारे नजर नहीं आ रहे होते, कहीं कहीं नजर आ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे एकदम फील हो रहा है कि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन है वो क्लासेस, वो ऐसे जैसे अंधेरे आसमान के ऊपर कुछ सितारे चमके, इस तरह वो अल्लाह ताला जो है वो देख रहे हैं कि देखो यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, यहाँ कुरान सीखा और सिखाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात है, कितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का इस बात पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र अदा करते रहिए मुसलसल। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पहले तालिबे इल्म का जिक्र है, कुरान सीखने वाले का। सो आप सबको मुबारक हो इस बात। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म तो हो नहीं सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना है। और हुक्म भी ये है ना कि आप माँ की गोद से कब्र जमने जाने तक जो है वो इल्म हासिल करें, ठीक है। यानी इल्म की एज नहीं होती, कहा जाता है बस शुरू के 17 साल 18 साल सीखना है या 20 साल या 25 साल तक, फिर यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अब तो पढ़ने की उम्र गुजर गई। पढ़ने की, इल्म हासिल करने की उम्र कभी भी नहीं गुजरती, कभी भी नहीं गुजरती। अभी मेरे पास क्लास में माशाल्लाह इतने मोहतरम जो हैं वो सिस्टर्स इस क्लास की मौजूद हैं, जो 60-70 प्लस भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं बहुत बहुत जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और वो मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ इस चीज में कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, इल्म की उम्र नहीं गुजरती, कभी नहीं। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे और सिखाए, ठीक है। सीखने तक महदूद नहीं रहना, अभी नियत कर लें, अभी अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, हमने अभी सीखा था पिछले इस बात में, सबकत ले जाना चाहिए, कामयाब होंगे इंशाल्लाह इस तरह। तो अभी नियत करें कि हम इंशाल्लाह सिखाएंगे, ये मत सोचे मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, सोचें, आप सिर्फ सोचें, नियत करें, अल्लाह ताला रास्ते बनाएंगे। अभी ऐसा करें, चंद सेकंड्स में जो है 10 सेकंड चले हम ये एक्टिविटी करते हैं, चैट बॉक्स में मुझे 2 लोगों के नाम भेजें या रिलेशन भेजें कि मैं अपनी मदर को सिखाऊंगी या मैं अपनी बेटी को या बहन को या फ्रेंड को। आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, मैं कुछ लोगों के मैसेज देखना चाहती हूँ, ठीक है। आपके जहन में जो फौरी तौर पे आ रहे हैं कि मुझे उनको सिखाना है, इंशाल्लाह के साथ,
जी चैट बॉक्स में देख रही हूँ। जी ब्रदर को सिखाऊंगी, सिस्टर महीन कह रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी आई विल टीच माय फ्रेंड्स एंड ब्रदर, कजन्स को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स को, सिस्टर को, सिस्टर्स को। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। तो आप अपने ज़हन में जो है ना अभी इरादा कर लें इस चीज़ का कि कम से कम 2 लोगों को हमें सिखाना है, सीख कर, ठीक है? इंशाल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। सो सिर्फ नाज़रा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हम कुरान सीखें, यानी समझ कर पढ़ें। अब हमारे पेरेंट्स ने इतनी तो ज़िम्मेदारी देखिए उन्होंने खुद पूरी कर दी कि हमें बचपन में ही कुरान सीखने के लिए एफर्ट की और हमने कुरान को नाज़रा सीख लिया। ठीक है? अब हम समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है ना, तो हम इतने ग्रोन अप हैं, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको समझें। क्योंकि कुरान पढ़ने का भी, यकीन कीजिए पढ़ने का भी, जिसको हम कहते हैं पढ़ लिया हमने, हक तब अदा होगा जब हम समझ के पढ़ेंगे। क्योंकि इस बात से पर हम सब मुत्तफ़िक हैं कि कोई भी किताब हम अगर कहते हैं कि हमने पढ़ी है तो उसको समझ रहे होते हैं एटलीस्ट। डिटेल में ना सही, एटलीस्ट जुमलों का मानी हमें समझ आ रहा होता है। इसलिए अभी इरादा कर लें कि हम उसका हक अदा करेंगे, तिलावत का हक, कि नाज़रा के साथ हम फ़हम कुरान भी सीखेंगे और फिर कुरान पर गौर करने के काबिल होंगे। जैसे कि कल हमने सीखा था कि कुरान के नुज़ूल के 2 मकासिद हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बाबरकत किताब है जो हमने आसमान से उतारी है, नाज़िल फरमाई है, और इसके 2 मकासिद हैं, एक तो इस पे गौर किया जाए, ठीक है? और दूसरा नसीहत हासिल की जाए। तो ये दोनों चीज़ें तभी हो सकती है जब हमें तर्जुमा आए, नहीं तो मकसद पूरा ही नहीं होगा। तो नियत और पूरी कोशिश दोनों चीज़ें रखनी है। नियत करेंगे तो डेफ़िनिटली नियत में अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे, अपनी नियत बनाकर, और फिर कोशिश करेंगे तो बस ये 2 चीज़ें करनी है, बाकी सारे मामलात हो जाएँगे, खुद ब खुद इंशाअल्लाह। इस सिलसिले को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सो याद रखने का एक अहम राज़, बहुत ही अहम राज़ जो हम सीख चुके हैं कि अल्फाज़ को मिसालों के ज़रिए सीखें। वो मिसालें जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में अक्सर जगहों पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके ज़रिए से हम लफ्ज़ों को सीखेंगे, मिसालें क्योंकि याद रहती हैं तो मानी जल्दी याद होंगे, भूल गए तो हम उनको दोबारा याद करना चाहेंगे तो जल्दी याद आएँगे, और एक लफ्ज़ का मानी दूसरे लफ्ज़ में मिक्स नहीं होगा। ठीक है? तो मिसालें बहुत मानी रखती हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इन का मतलब अगर किसी से पूछा जाए, तो बहुत कम लोग होंगे जो शायद जानते हों। लेकिन अगर कहा जाए इंशाअल्लाह का मतलब बताएँ, तो बहुत ज़्यादा लोग बताएँगे अगर अल्लाह ने चाहा। क्योंकि ये लफ्ज़, ये मिसाल हम इस्तेमाल करते हैं आम ज़िंदगी में। इसलिए इन का मानी जब आपको भूल जाए, आप उसकी मिसाल को ज़हन में लाएँ। ठीक है? इन, अगर। इसी तरह इन्ना, किसी को शायद याद ना हो लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन पे अक्सर लोगों को याद आ जाएगा। बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। तो इन्ना का मतलब हुआ बेशक, जिस चीज़ में कोई शक ना हो। अब तीसरा लफ्ज़ मैं इसी तरह का आपको एक और बता रही हूँ आज, मुतार्रिफ़ आज करवा रही हूँ। इन्नमा, उसको हम समझेंगे इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी जो किताब है, ठीक है? वहाँ से हम हदीस की किताब, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, एक और हदीस को समझते हैं जो बहुत अहम है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। अब नियत की बात होगी जो हमें, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इन्नमा का मतलब क्या है? सिर्फ़, बस। इन्नमा सिर्फ़, बस। अब अगर आपको कभी भूल जाए, इन का मानी भी हमने पढ़ा था, इन्ना का पढ़ा था, अन का, अन्ना का। अब इन्नमा भी वैसा है, भूल जाए तो सोचिए मिसाल क्या थी? मिसाल है इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसका मानी था अमाल तो सिर्फ़ नियतों पर है, अमाल तो बस नियतों पर है। इस तरह हमें इन्नमा का मानी याद आ जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। इन्नमा का मतलब बस, सिर्फ़, इंग्लिश में ओनली, ठीक है? जस्ट वी कैन से। अगला लफ्ज़ है अल अमाल। अमल वाहिद है, अमाल उसकी जमा है, और अमल का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी काम करना, ठीक है? कोई भी काम बाकायदा करना, और इसकी जमा है अमाल। उर्दू में हम इसको अमलों भी कहते हैं, अमाल भी कहते हैं। तो ये हमें पहले से पता है। बिन निय्यात, इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो है निय्यात। निय्यात का वाहिद है नियत। एक शख्स की नियत होगी, मेरी, आप में से एक की, सबकी मिलाकर होंगी निय्यात, नियतें उर्दू में, ठीक है? इससे पहले कि आगे जाएँ हम समझ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह वाक़ई हमारी नियतों को अच्छा कर दो। इसमें भी तो हमारी मदद फरमा, हम बहुत बेबस कमज़ोर हैं, शैतान भी हमारे साथ है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए
कि या अल्लाह हमारी नियतों को अच्छा करे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अमाल जो है हमारे नियतों पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है? फिर हमने सोचना है कि हम कितनी अच्छी नियत से काम करते हैं कोई या नहीं करते, एहतसाब करना है। फिर आने वाले वक़्त का प्लान बनाना है कि हमें अपनी नियत पर इंशाल्लाह अब मेहनत करनी है और फिर दूसरों को ये वाली बात बतानी। अमाल तो बस नियतों पर है। क़यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा, ध्यान से सुनें। अल्लाहू अकबर। उसमें से एक कुरान का कारी और टीचर। कौन? जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। सुने ज़रा कितनी मतलब नज़ाकत, इस बात की नज़ाकत को सॉरी इस बात की नज़ाकत को ज़रा समझें। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? 3 लोगों का फैसला पहले से होगा, जिनमें से एक शख्स कुरान का टीचर या उस्ताद होगा या कारी होगा, जो दिखावे के लिए लोगों में शो ऑफ के लिए पढ़ाता था। उन्हें पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह हम सबको महफूज रखे जहन्नुम से, ठीक है? तो इससे ये साबित हुआ कि इतना बड़ा अमल, कुरान सिखाने का अमल भी अगर उसमें नीयत खराब होगी तो वो बर्बाद है, समझे कि वो तबाह है। इतना बड़ा अमल, तो इसका मतलब है बाकी अमल का क्या होगा? मतलब नीयत इस कदर अहम है, इस कदर। नीयत होती क्या है? सोच हमारी, उस काम करने के पीछे हमारा दिल और दिमाग क्या कह रहा है, किस सोच के साथ हम वो काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं नीयत। तो ऐसे अमल को तो अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल नहीं फरमाएगा जो दूसरों को दिखाने के लिए हो। अब हमें समझना है कि फिर किस तरह से हो, फिर क्या हो। ठीक है? ओके, तो यहाँ देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इंशाल्लाह हमें ये ज़हन में रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सीखेंगे और दूसरों को सिखाएँगे। ठीक है? हमने इस बात को इंशाल्लाह अपने ज़हन में रखना है। आज हमें इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्म मिला है, अब हमने इस बात को नहीं भूलना कि इंशाल्लाह हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिखाएँगे, लोगों को शो ऑफ के लिए नहीं। ठीक है? इस बात को याद रखिए। जैसे ईद उल अज़हा पे अगर कोई कुर्बानी कर रहा है और वो ये सोचे कि मुझे तो महँगा अच्छा जानवर इसलिए लाना है ताकि लोग मुझे नेक समझें। मैं हज इसलिए करूँ ताकि लोग मुझे हाजी कहें और नेक समझें। ठीक है? तो हमें ऐसी चीज़ नहीं सोचनी। अगर ऐसा ख़्याल आए तो फ़ौरन तअव्वुज़ पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें ऐसे गलत ख़्याल से, वसवसे से अपनी हिफ़ाज़त में रख। ठीक है? हम ये तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं। हमें अपनी नीयत पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक और बहुत अहम बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या है वो? दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझते। एप्रोक्सीमेट, ये बात ज़रा अंदाज़ा लगाइए, हम मुसलमानों के लिए किस कदर सोचने की, फ़िक्र करने की बात है। लम्हा फ़िक्रिया है कि 100 में से समझो 90 लोग हम मुसलमानों में से कुरान को समझते ही नहीं हैं। इसलिए हम खुद कुरान को समझेंगे इंशाल्लाह, फिर उनको समझाएँगे। हम इस कार्य खैर का हिस्सा बनेंगे, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पर फ़र्ज़ है। सही बात को, हक बात को सीखें, आगे सिखाएँ, अल्लाह के दीन को। ये हम पर फ़र्ज़ है, ताकि हर मुसलमान इंशाल्लाह इस काबिल हो सके कि वो गैर मुस्लिमों के सामने कुरान के पैगाम को बेहतरीन तरीके से पेश कर सके, वो इस काबिल हो। इंशाल्लाह हम इस कोशिश का हिस्सा बनेंगे। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल तो बस नियतों पर है। अब अगर इतना बड़ा इरादा नियत हम करेंगे और वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, तो उसका कितना फ़ायदा है? और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। इन्ना, इन्नमा, 3 अल्फ़ाज़ हमने समझ लिए। इनका मतलब है अगर, इन्ना बेशक, इन्नमा सिर्फ़, और इनकी मिसालें हमारे सामने अभी मौजूद हैं। ये अल्फ़ाज़ भी कुरान में 2000 से ज़ायद दफ़ा आए हैं। तो ये बहुत अहम है, इनको अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक बहुत ही अहम था, बहुत ही ख़ास बातें थी जो हमने सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक 18A, सबक नंबर 18 के पहले हिस्से को समझने के बाद अब हम ग्रामर समझने जा रहे हैं, यानी सबक 18 का हिस्सा बी, दूसरा हिस्सा। आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से, और देखते हैं कि ग्रामर में आज सीखने के लिए क्या है। इस सबक में हम नई जो चीज़ सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने सबक के आगाज़ में बताया कि आज मैं
इस खूबसूरत बेहतरीन कुरान कोर्स 1 की ग्रामर का आखिरी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, आखिरी मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है? और वो क्या है? फाइल, मफऊल, फिल। इंतहाई दिलचस्प, मुझे यकीन है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आसान भी लगेगा और आप इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये नई चीज है जो आज मैं आपको मुतारिफ कराने जा रही हूँ। तो हम आज सीखेंगे फ़अला, जाला, फ़तह, नसरा, खलका से फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िल बनाना, जो इंतहाई आसान है। तो मुस्कुराइए, अल्लाह के शुक्र के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि वादा है अल्लाह सुब्हाना तआला का कि कुरान आसान है, और फिर कोर्स में भी ऐसी टेक्निक शामिल कर दी गई है कि चीजें और भी आसान हो जाएं। तो टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ऐसा तरीका है कि हमने इन 7 चीजों के जरिए से इंटरेक्ट करना है सबक के साथ, अपना रब्त बनाना है, ठीक है? टोटली फिजिकली हमने रब्त बनाना है, ताल्लुक रखना है सबक से, तब हम काम कर पाएंगे। तो आप में से मैं चाहूंगी कि पहले कौन इनको पढ़े? राइट, सिस्टर इशाल बाजवा, आप अगर अपना माइक अभी ऑन कर लें और आप इनकी प्रैक्टिस करवाइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर हानिया एहसन, मैं चाहती हूँ आप भी इनको रिपीट करवा दीजिए एक बार। जी सिस्टर हानिया एहसन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का एक और दिलचस्प हिस्सा हम ध्यान से सुनेंगे, स्लाइड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, सोचते रहेंगे, साथ सोच को इस्तेमाल करेंगे, कहीं और ध्यान नहीं लेकर जाएंगे, और बोलेंगे भी। चाहे किसी का माइक ऑफ है या ऑन है, उसने अब जो है वो प्रैक्टिस करते रहना है जुबान से भी, और इशारे भी करना है। हम एक दूसरे को नहीं देख रहे, बट अल्लाह सुब्हानहू तआला वॉच करें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह। ठीक है, इशारे भी करें, दिल से मोहब्बत से करें, बोर होकर जबरदस्ती नहीं करें, ठीक है? और इंशाल्लाह मिलकर कर रहे हैं, मिलकर करते रहेंगे। जी, अल्फाज की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ है। इस्म का मतलब है कोई ऐसा लफ्ज जो किसी का नाम हो या किसी की खूबी हो, सिफ्त हो या खामी, कोई भी, जो कोई भी सिफ्त किसी के साथ जुड़ी है, उसको कहते हैं इस्म। फेल कोई ऐसा लफ्ज होता है जिससे किसी काम का पता चले जमानों के हिसाब से, तीनों जमानों में, माजी, हाल और मुस्तकबिल में। हर्फ वो लफ्ज होता है जो इस्म और फेलों को आपस में जोड़ता है जुमले बनाने के लिए, और वो तमाम अल्फाज जो इस्म या फेल नहीं है उनको भी हर्फ कहा जाता है। फेल की 3 इकसाम हम पढ़ चुके हैं। आज मैं चाहूंगी आप में से कोई इसको ऐसे ही सिंपली दोहरा दे कि ये 3 क्या हैं। सिस्टर्स में से मैं चाहूंगी सिस्टर खदीजा ज़हरा अपना माइक ऑन करें, और ये जो स्लाइड नजर आ रही है इसको बताएं सबको 3 इकसाम कौन सी है। जी, पहली किस्म फेल माजी है, जिसको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस कहते हैं, और फेल माजी होता है जो हो गया है। दूसरी किस्म जो है वो फेल मुजारे है, जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, इसको इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तीसरी किस्म जो है वो फेल अमर है, जिसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव टेंस कहते हैं, और इसमें हुक्म देना या गुजारिश करना होता है। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो देखिए ये हमारी एक तो टीचर बिल्कुल रेडी है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ इनके बारे में कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आराम से एक्सप्लेन किया। तो देखिए शी इज रेडी, सो एवरीबडी इज रेडी टू डू। माशाल्लाह, इसी तरह कोशिश करते रहे, इसी तरह हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब तक हमने क्या सीखा, हम जरा लाइक वे में उसको देख लेते हैं। फेल फ़अला का टेबल हमने सीखा है, जिसके बारे में कहा था कि ये तो मॉडल टेबल है, ठीक है? मॉडल टेबल, इसकी प्रैक्टिस अरबी जुबान में लाइट सी हम कर लेते हैं। सिस्टर शीजा अपना माइक ऑन करें और अरबी जुबान में प्रैक्टिस करवाएं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। माशाल्लाह, अब हम देखते हैं, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए सिस्टर। हम देखते हैं ये स्लाइड, अब तो तकरीबन हम रोज़ ही इसको देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम है। तो देखें कि 4 पहले जो टेबल मैंने आपको बताया, मैंने कहा ये मॉडल टेबल है। पूरी ग्रामर के टेबल सीखने के लिए इसको आप मॉडल टेबल समझकर, जैसे कोई सांचा हो जिसमें कोई चीज़ बनाई जाए, तो वो सांचा अगर समझ में आ जाए तो चीज़ वैसी बनती है। तो ये समझिए सारे टेबल्स के लिए सांचा है। अब मैं आपको 4 टेबल बना रही हूँ जो 4 अहम बाब हैं। बाब कहते हैं दरवाज़ा, जिससे आप दाखिल होते हैं। तो फतहा एक बाब है,
नसरा एक बाब है, ज़रबा समिया, ये 4 बाब हैं, या स्टाइल हैं, या पैटर्न है, या नमूने हैं, जिनको साथ समझने के बाद हमें और बहुत सारे टेबल्स जो हैं, हजारों अल्फाज जो हैं वो समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इन चारों को समझना है। फतह, नसरा, ज़रबा, समिया, इनमें जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं वो यहाँ पर हमें उन्हें पॉइंट आउट कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ तब्दीलियां हो रही हैं, और वही तब्दीलियां जो इनके साथ के टेबल होंगे उनमें भी होंगी। आज के सबक में हम क्या सीख रहे हैं? आपका इंतजार खत्म हो रहा है। सबसे पहले तो अपने हैंड अभी लो कर लें, जब मैं अगला सवाल करूं तो आपने हैंड रेज करना है। ठीक है, ओके जी। आज के सबक में हम फा आइन लाम, जो कि मॉडल टेबल का मॉडल वर्ड है, फा आइन लाम, उससे नई चीज बनाना सीख रहे हैं। अब तक हमने सीखा फेल मादी, फेल मुजारे, फेल अम्र, और अम्र के साथ नहीं भी था, अम्र के अंदर ही आ जाता है, अम्र व नहीं। आज जो मैं सिखा रही हूँ वो क्या है? फाइल, मफऊल, फिल। ये 3 अलग टेबल नहीं है, इजी हो जाए, ये 3 सिर्फ अल्फाज हैं माशाल्लाह, जो हम फा आइन लाम से बना रहे हैं। अब हमेशा फा आइन लाम क्यों सिखाए जाते हैं? क्योंकि ये रूट लेटर्स हैं, ये बेसिक हैं, जड़, जिसको जड़ कहते हैं ना। आप कोई भी लफ्ज इनसे बना रहे हैं ना, उसमें फा भी होगा, आइन भी होगा, लाम भी होगा। बाकी अलिफ, ता, बहुत सारी चीजें कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, लेकिन फा आइन लाम आपको सब जगह नजर आएगा। चाहे आप मादी देखें, मुजारे देखें, अम्र देखें, और अभी देखें फाइल, मफूल, फेल, तीनों में फा आइन लाम मौजूद है, क्योंकि ये रूट हैं, जड़ें हैं जिनको कहते हैं ना। ठीक है, ओके। मादा, मादा जो हुरूफ इनको कह सकते हैं, राइट। फाला से हमने सीखा फाइल, मफऊल, फेल, इनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें, फाइल कहते हैं काम करने वाला, जो काम करने वाला है किसी भी बात में, जुमले में, उसको कहते हैं फाइल। मफऊल कहते हैं जिस पर काम से असर पड़ा, ठीक है, और फेल कहते हैं काम को करना। अब अगर मैं आपको, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं, मैं आपको एक जुमला बताती हूँ उर्दू में, तो आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, आपने मुझे बताना होगा उर्दू के जुमले में काम करने वाला कौन है, फाइल कौन है, मफऊल कौन है जिसपे काम से असर पड़ रहा है, और फेल कौन है। ठीक है, तो जुमला क्या है? अली ने असद को मारा। अब आप मुझे इसमें ये बताएं कि अली कौन है, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अली कौन है? फाइल है, मफऊल है, या फेल है? अली फाइल है, माशाल्लाह। सिस्टर आमना इरशाद ने बताया अली फाइल है, क्योंकि अली मार रहा है ना, काम करने वाला है। ओके, असद क्या है उसमें? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। जी, राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच इट। अली मफऊल है, माशाल्लाह। काफी सारी सिस्टर्स बता रही, सिस्टर अजरा, मेमूना, शिजा, सिस्टर अमाल, सिस्टर सलमा, सिस्टर तैयबा, माशाल्लाह, सिस्टर अनीला, एवरीबॉडी इज टेलिंग हियर मफऊल है वो जिसको मारा जा रहा है, क्योंकि काम करने से उस पर असर पड़ रहा है। इसमें फेल क्या है? जी, फेल क्या है? मुझे चैट बॉक्स। मारा, मारना, जी जबरदस्त, मारना, मारने की बात हो रही है ना, तो मारना क्या है? वो काम है जो यहाँ पर हो रहा है, तो उस काम का जो नाम है वो है मारना, उसको कहेंगे फेल। बिल्कुल इस मिसाल को जहन में रखें, तो अभी जो बताने जा रही हूँ समझे कि आधी चीज तो आपको याद होगी। फाइल काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, मफूल जिस पे असर पड़ रहा है, और जो काम हो रहा है असल चीज वो है फेल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इनके इशारे क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीपीआई में हम इतने बेहतरीन तरीके से, एक स्मार्ट वे में, मॉडर्न वे में कुछ चीजें हमने सीखी हैं। ठीक है, और वो चीजें इसलिए सीखी है ताकि कुरान समझना आसान हो, एक तमाम इंसानों के लिए, फितरती तौर पर इंसान हो, जैसे आसान हो। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपने नोट किया होगा बहुत सारी बातों में इशारों से बता रही होती हूँ, इतने नंबर, इतनी चीजें, तो उससे मुझे बताने में आसानी होती है, शायद समझने वालों को भी आसानी होती है, इसीलिए हम इशारे सीखते हैं। तो फाइल, मफूल, फेल के इशारे क्या है? काम करने वाला, आप ये कंसीडर करिए जैसे कोई किसी की हेल्प कर रहा है। ठीक है, आप, अगर मैं या कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं, या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को चीज दे रहे हैं, तो हम कैसे देते हैं? इस तरह से पकड़ाते हैं उसको हाथ से। तो काम करने वाले का इशारा ये होगा, फाइल, करने वाला। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला। फाइल, इशारा ध्यान से देख लें, मुझे यकीन है आप सब इशारे सब कर रहे होंगे। मफऊल पे असर पड़ रहा है, तो आप ये सोचो जब आप किसी को कोई चीज देते हैं, तो रिसीव करने वाला हाथ को इस तरह से करता है ना। ठीक है, तो आप जो है कोई चीज रिसीव करते हैं इस तरह से, तो हम मफऊल का इशारा ऐसे करेंगे, मफऊल, फाइल, मफऊल, काम करने वाला जिससे काम का, जिस पर असर पड़ा,
फाइल मफऊल, ठीक है। और फेल क्या है, काम का नाम है। तो देखिए पूरे टेबल में मैं समझती हूँ, बल्कि आप भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, करेंगे कि सबसे अहम लफ्ज है फेल, क्योंकि पूरे टेबल में बात किस चीज की हो रही है, काम कौन सा है जिसकी बात हो रही है, उस काम का नाम क्या है। पूरे टेबल में कभी हम माजी में बात कर रहे हैं, कभी मुदारे में, कभी अम्र में, नहीं में, अब हम फाइल मफूल बना रहे हैं। तो असल चीज क्या है, काम का नाम क्या है, वो क्योंकि सबसे अहम है तो उसका इशारा हम ये करेंगे, सॉलिड। सॉलिड स्लोगन्स होते हैं ना, नारे लगाने के लिए भी इस तरह से हाथ को जो है वो इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये होगा फेल, असल लफ्ज जो है, काम का नाम, ये उसका इशारा होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से इन अल्फाज को ऐसे समझाऊं कि आपको ये भूले ना। तो फाइल मफऊल फेल, आप सब जहां पर भी है इशारे कीजिए, फाइल मफऊल फेल, एक बार फिर फाइल मफऊल फेल, एक बार फिर काम करने वाला जिस पर उस काम से असर पड़ा, और काम का नाम या काम करना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छे से हम इसको अभी समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो प्रॉपर टेबल के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, बॉक्सेस में। फाइल पहले आएगा, काम करने वाला, मफूल जिस पे असर पड़ा, फेल करना, जी। तो अब हो गया माशाल्लाह हमारा टेबल मुकम्मल, राइट। तो आप सब लोग जो है वो अपने माइक ऑन करके जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि टेबल आपको नजर आ रहा होगा। टेबल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बात है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना है। तो इस बात को ज़हन में रखिए कि जो टेबल हमें नजर आ रहा था, जो अब तक हमने सीखा है, अब उसका जो एक पूरे फॉर्म में आ गया है, पूरी सूरत जो है टेबल की वो ये है, ठीक है। क्या है वो, देखिए फेल मादी भी हमने सीख लिया, फेल मुदारे भी सीख लिया, फेल अम्र भी सीख लिया, आज हमने फाइल मफूल फेल भी सीख लिया, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ देख रहे होंगे जो नई है, इस टेबल में क्या चीज नई लग रही है, जरा मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए, इस टेबल में आपको क्या चीज नई लग रही है जो पहले टेबल में नहीं दिखाई जाती। कोई ऐसी चीज नजर आ रही है आपको, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। कोई चीज नहीं है क्या, नहीं, फाइल मफूल फेल तो है, रेड कलर में जो अंडरलाइन किया, यस यस, सर्कल किया हुआ है ना, उसको बॉक्सेस बना दिए रेड कलर में, ये नया है जो पहले नहीं था, ठीक है। फाइल मफूल फेल तो नए हैं, वो तो हमने अभी बात कर ली, लेकिन दूसरी नई चीज क्या है, रेड कलर में कुछ अल्फाज को हाईलाइट कर दिया गया है, क्यों, कोई वजह होगी ना। तो आज मैं एक और मजे की बात बताती हूँ, हम ये समझेंगे कि ये पूरा जो फेल मादी है इसकी चाबी यानी की क्या है, फ़अला। फेल मुदारे की चाबी यानी की जिससे हम ये टेबल खोल सकते हैं वो है यफ़अलु। फेल अम्र की चाबी है इफ़अल, और फाइल मफूल फेल तो खुद अलग अलग अल्फाज हैं, ठीक है। तो वो तीनों ही चाबियां हैं। इस तरह से मादी की कितनी चाबियां बनी, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, टोटल कितनी चाबियां बनी पूरे टेबल की, टेबल की चाबियां कितनी हैं, 4 हैं, 6 हैं, यस दिस इज राइट आंसर, 6 चाबियां हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं, राइट। हमें इस बात को याद रखना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले सिर्फ चाबियों को दोहरा लेते हैं, फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िअल। ये देखिए चाबियां शॉर्ट फॉर्म में छोटे से अल्फाज में थोड़े वक्त में टेबल को याद करने के लिए हम चाबियां दोहराएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ये टेबल को हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है अभी, इन सवालात की जो है वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बोलचाल की। तो इसके लिए सिस्टर माहीन नबील अपना माइक ऑन करें। याद रखिए ये जो लफ्ज है फाइल, ये वाला लफ्ज है फाइल, काम करने वाला। अब आप जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे जवाबात दे रहे हैं, वो यकीन करें, यकीनी तौर पर इशारों के साथ जवाब दें, इस चीज के वादे के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हल अंता फाइल, क्या आप काम करने वाले हैं, सिस्टर माहीन जवाब दें। नाम अना फाइल, जी हाँ हम काम करने वाले हैं। हम, अना का मतलब हम है सिस्टर, हम मैं, जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ, माशाल्लाह। तो इशारा क्या होगा, जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ, नाम अना फाइल, ठीक है। अब अगर दूसरा सवाल सिस्टर माहीन ही हमें बताएंगी इशारात के साथ, हल अंतुम फाइलून। अब देखिए मैंने फाइल का जमा बनाया तो फाइल वाला इशारा थोड़ा सा इधर कर दिया,
میرے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے آپ. فاعل فاعلون, ٹھیک ہے, فاعل فاعلون. تو سسٹر مہین بتائیے, ہل انتم فاعلون, کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ نعم نحن فاعلون. جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ, بہترین. اب جلدی سے ہینڈ لو کر لیں, اگلے سوال کے لیے آپ دوبارہ سے ہینڈ ریز کریں گے. جی, فتح کا اگلا ٹیبل تھا, ٹھیک ہے. جو نئے ہینڈ ریز کیا کریں گے اب میں ان کو چانس دوں گی, ٹھیک ہے. سوال کرنے کے بعد جو ہینڈ ریز کریں گے ان کو جواب دیں گے, تو آپ اپنے ہینڈ سب لو کر لیں, میں اس چیز کا دھیان رکھوں گی. فتح کا ٹیبل جو ہم نے پڑھا تھا, فتح اس نے کھولا, ان سب نے کھولا, ٹھیک ہے. اس ٹیبل کے فاعل مفعول فعل کیسے بنیں گے؟ فاعل کی جگہ بن جائے گا فاتح, مفعول کی جگہ آ جائے گا مفتوح, اور فعل کی جگہ فتح, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں زبر زیر وہی اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت ہی آسانی سے فعلا کے ہی سیٹ میں سے فتح بھی تھا, جعلا بھی تھا, آپ نے دیکھا تھا. تو ہم ان کے فاعل مفعول فعل کیسے بنائیں گے؟ فتح کے ٹیبل کے فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا, ٹھیک ہے. یہ تینوں پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں, کون سنا رہے ہیں؟ I'm watching جو ابھی نیا ہینڈ ریز کرے گا. جی, سسٹر رابعہ کمل, آپ اپنا مائک آن کریں. یس میم. جی سسٹر, باقی لوگ ہینڈ لو کر لیں اپنے. آپ مجھے یہ تینوں پڑھ کے بتائیں ترجمے کے ساتھ. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. فتح کھولنا, تا کو نا زبر کے ساتھ نہیں پڑھنا. فتح, تا پر بھی جزم ہے اور ہا پر بھی ہم اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے جی, ماشاءاللہ. نئے سوالات کے لیے آپ میں سے سسٹر صبا کمل, آپ اپنا مائک آن کریں. سسٹر صبا کمل. جی سسٹر صبا, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ اشاروں کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں گی. ہل انتا فاتح, کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ جواب دیجئے. نعم انا فاتح, ہاں ہم کھولنے والے. ہم نہیں, میں, انا میں. جی ہاں میں کھولنے والا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں, حل المسجد مفتوح, کیا مسجد کھولی گئی ہے؟ اب کھولی گئی کا اشارہ یہ ہوگا کیونکہ یہ مفعول ہے. کیا مسجد کھولی گئی ہے؟ سسٹر صبا جواب دیجئے. نعم نعم المسجد مفتوح, جی ہاں مسجد کھولی گئی ہے. جی ہاں مسجد کھولی گئی ہے, رائٹ, مسجد کھولی گئی ہے, یہ اسی طرح سے ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے جعلا سے, تینوں الفاظ موجود ہیں. جعلا سے فاعل مفعول فعل کیسے بنیں گے؟ جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. تو اس کی پریکٹس کر لیں. سسٹر رشدہ خان, مائک اپنا آن کریں. سسٹر رشدہ خان. جی سسٹر. جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. بنانا, ماشاءاللہ. سسٹر مہک فاطمہ, آپ اپنا مائک آن کریں اور ہم بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں سسٹر مہک, ہل انت جاعل, کیا آپ بنانے والے ہیں؟ نعم انا جاعل. جی ہاں میں بنانے والا ہوں. کیا آپ بنانے والے ہیں؟ جی ہاں میں بنانے والا ہوں. اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سسٹر مہک, ہل انتم جاعلون, کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ یعنی یہ جمع میں ہے. نعم نحن جاعلون. جی ہاں ہم سب بنانے والے ہیں. ہم سب بنانے والے ہیں, جمع کے لیے ہاتھ کا اشارہ ایسے ہوگا. جی, اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ناصرہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے. ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس کے لیے سسٹر نور الہدا, آپ اپنا مائک آن کر لیں پلیز. تینوں کی پریکٹس کروا دیں. سسٹر نور الہدا, سسٹر نور الہدا, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ چلے ہم کسی اور کو موقع دے دیتے ہیں, اٹس فائن. یہاں سے سسٹر سعدیہ کمل. جی سسٹر سعدیہ, مائک آن کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, اور نصر مدد کرنا. مدد کرنا, ماشاءاللہ. ناصر, منصور, نصر. سسٹر سمیہ رفیق, اگلی بول چال کے جملوں کے لیے اپنا مائک آن کر لیں. جی
جی نصر سے اگر ہم بنائیں فاعل مفعول فعل تو بنے گا ناصر منصور نصر مدد کرنے والا جس کی مدد کی گئی اور مدد کرنا. تو میں سسٹر سمیہ آپ سے اگر پوچھتی ہوں ہل انت ناصر کیا آپ مدد کرنے والے ہو کیا آپ مدد کرنے والے ہو آپ کیا کہیں گی؟ نعم انا ناصر جی ہاں میں مدد کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. ہل انت منصور کیا آپ کی مدد کی گئی ہے؟ نعم انا منصور جی ہاں میری مدد کی گئی ہے. جی ماشاءاللہ. اب دیکھیے ہمیں بہت فوکس رہنا ہے. اگر ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں نا پوری توجہ سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں پھر غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی. بہت کم چانسز ہے کہ ہو. ٹھیک ہے جیسے ناصر آیا تو ہم نے یہ اشارہ کر دیا مدد کرنے والا. منصور تو ہم نے ہاتھ کو الٹ دیا اور اشارہ بدل دیا جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں. خلاقہ کے ٹیبل سے اگر ہم دیکھیں تو سسٹر خدیجہ زہرا اپنا آپ مائک آن کریں. آپ ان کی پریکٹس کروا دیں تینوں الفاظ کی. فاعل مفعول فعل خلاقہ کے کیا ہیں؟ جی سسٹر خدیجہ. خالق پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا گیا خلق پیدا کرنا. ماشاءاللہ. سو دس از کمپلیٹڈ ناؤ. الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو لیسن تھا وہ کتنا آسان تھا. نقطۂ تعلیم کی طرف آتے ہیں. بہت 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 خاص بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ہینڈ لو کر لیں کیونکہ سوالات جوابات کا جو سلسلہ تھا وہ ابھی مکمل ہو گیا ہے. آپ اپنے ہینڈ لو کر لیں. جی دعوت دینے کا انداز. اب ایک چیز یہ ہے نا جیسے میں یہاں ہوں آپ ہیں ہم کہیں ہاں ہماری ذمہ داری ہے ہمیں قرآن کلاس میں پتا چلا کہ جو اچھی باتیں ہمیں پتہ ہے ہمیں دوسروں کو بتانی ہے انشاءاللہ باقاعدہ قرآن بھی سکھانا ہے تو بس ہم یہ کر لیتے ہیں اور پھر دوسرا کام. ٹھیک ہے ہر چیز کو ایک بیلنس ٹائم دینا ہوتا ہے لیکن ہم نے ایسے ہی نہیں کرنا ہم نے اسے دل سے کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انداز بیان بھی کتنا ضروری ہے. دعوت دینے کے کا انداز کتنا ضروری ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم کسی کے کھانے کی دعوت پر جائیں یا کسی کو کھانے کی دعوت پر فار ایگزامپل بلا رہے ہیں اگر ایسے مردہ سی بیزار آواز میں کہیں اچھا آپ نے ہمارے گھر آنا ہو تو آپ آ جائیں افطار پارٹی پر. ٹھیک ہے آپ دعوت پر اگر آنا ہو تو آ جائیں آپ آئیں گے ہمارے گھر کیا. اگر اس طرح سے ہم پوچھیں گے تو اگلا انسان کیسے سوچے گا. وہ سوچے گا کہ نہیں رہنے دیں آپ بھی مصروف ہیں وہ ایسے ہی کہے گا نا. مطلب یہ کیسی دعوت ہے. وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرے گا ایسی دعوت سے تو ایسے ہی ٹھیک ہے تو یہی کہے گا نا. ٹھیک ہے تو ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کتنی محبت سے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اچھے انداز میں کہا جائے کہ آپ نے ضرور آنا ہے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس دعوت پر آئیں تو ہم باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اس طریقے سے انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں بات ہو رہی ہے کون سی دعوت کی. کھانے کی دعوت نہیں دعوت دین کی. اللہ کے دین کی طرف دعوت اللہ کی طرف دعوت یہ ہے بہترین دعوت. تو یہ دعوت ہمیں کیسے دینی ہے ذرا سوچیں. ٹھیک ہے اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے اپنے ذہن کو بھی اگر ہمیں دعوت دینی ہے کسی اور کو نہیں تو ہم کیسے دعوت دیں گے. یہ کہ بس فائنل کوئز ہونے والا ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اپنے ذہن کو بھی تیار کرنا ہے اپنے ذہن کو بھی خود دعوت دیں کہ نہیں جو کام میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے. اس طریقے سے دعوت دیں تاکہ ہمارا ذہن بھی محبت سے سیکھنے کو آئے تبھی چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسروں کو اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو بھی تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں. چاہے اپنے ذہن کو دعوت دے رہے ہیں یا کسی دوسرے کو محبت کے ساتھ اس انداز میں دعوت دینی ہے. ہمارا ایک جملہ ایک انداز اسے دین کی طرف لا بھی سکتا ہے اور دور بھی کر سکتا ہے. اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے دعوت نہ دیں تو ہمیں اپنی طرف سے جو ہماری صلاحیت ہے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دینی ہے. محبت سے شوق سے ایسی بات کرنی ہے کہ اس کا بھی دل چاہے کہ یہ اللہ کی بات کرنے والا انسان اتنے اخلاق سے بات کر رہا ہے اس نے اللہ کا دین سیکھا ہے تو اس کے اخلاقیات اتنے اچھے ہو گئے تو مجھے بھی ایسا دین سیکھنا ہے. اور وہ دین کیا اتنا اچھا ہے جتنا یہ مجھے بتا رہا ہے. تو یہ ہمارے انداز بیان پر ہوگا. صرف کہنا تو کافی نہیں ہوتا نا. اگر ہم اچھے طریقے سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی سیکھنے کو آئے نہیں کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اگنور کر دے. تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا. اب ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس کے کرم سے آج ہم نے 20 اسباق میں سے 18 اسباق کو سمجھ لیا ہے. آج کے 18 اسباق کی تکمیل کے ساتھ ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں 40,469 ٹائمز. اور دیکھیں ہمارے دماغ کی جو بیٹری ہے وہ قرآن کے علم سے اتنی بھر چکی ہے بس اتنی سی خالی ہے. جب یہ بھی آ جائے گی تو سمجھے ہمارا دماغ
ایک کامیاب انسان کے دماغ کے طور پر مکمل طور پر چارج ہو جائے گا, اور جب مکمل چارج ہوگا تو پھر ہم کامیابی کے کام اچھے سے کریں گے. ٹھیک ہے, بہت جلد ہم یہ خالی حصہ بھی فل کرنے والے ہیں. ارادہ کریں, نیت کریں, اللہ سے دعا مانگے اس کی کہ ہم جلد 78,000 تقریباً جو الفاظ ہیں, جو بھی الفاظ ہیں ان کو سیکھ چکے ہوں گے. اپنے ہوم ورکس باقاعدگی سے کرتے رہیے, چیزوں کی پریکٹس دہرائی کرتے رہیں. اور جیسا کہ اس کلاس کے بہت سارے لوگوں نے ٹیچنگ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع بھی کر دیا, اور جو روز سیکھتے ہیں تھوڑا بہت گھر میں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ارادے کے ساتھ اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.